about Osho, Acharya Rajneesh, Bhagwan, or the sex guru. As most of you know that I have spent few days in the Osho commune and I'm back with a lot of learning. So I thought of making this quick video about something to talk about Osho and my learnings so that it's beneficial for all of us. And I think at least इतना तो बनता है वहां से इतना कुछ लाने के बाद. तो ये वीडियो एंड तक देखिए अगर आप जानना चाहते हैं ओशो के बारे में कुछ ऐसी बातें जो अब तक नहीं पता थी या मेरे एक्सपीरियंसेस को नटशेल में. थैंक यू सो मच. आई एम पूजा शर्मा, योर फ्रेंड गुरु एंड गाइड. अब शुरू करते हैं ओशो के बारे में. तो उनका असली नाम क्या था? सेक्स गुरु या भगवान या आचार्य रजनीश तो हम जानते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट ही वाज बोर्न इन अ जैन फैमिली? यस, एंड ही इज वन ऑफ द 11 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स. 11 बच्चे और उनके पिताजी का कपड़ों का काम था, इसीलिए उनका अधिकांश बचपन अपने नाना नानी के साथ ही बीता. ये बात ओशो के लिए बहुत ही उनकी सफलता के लिए बहुत अच्छी हुई क्योंकि उनके लाइफ पे उनके नाना और नानी की अपब्रिंगिंग और टीचिंग का बहुत इफेक्ट आया. वो जबलपुर में पैदा हुए और उनका असली नाम था, आई विल रेफर टू माय नोट्स वेयरएवर इट इज नीडेड टू मेक श्योर दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग बिकॉज इट्स सो ओवरवेलमिंग. आई हैव सो मच टू शेयर दैट आई कैन टॉक अबाउट इट for days, forget hours. So his real name was Chandra Mohan Jain, और जैसे कि ओशो वर्ल्ड में कहा जाता है, Osho was never born, he never died. He just visited the planet Earth between 11 December 1931 till 19 January 1990. He got moksha, oh yes, the spiritual ascension or enlightenment, जिसका ये नशे में और स्वाद में हम सब लोग लगे हुए हैं. केवल एकमात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी, which happened in the year 1953. उनके लाइफ में काफी पेन और सेटबैक्स आए. उनके कुछ गर्लफ्रेंड की डेथ या फादर की डेथ, जिससे उनके इनवर्ड एक मूवमेंट हुई लाइफ में और उन्होंने सोचा. वो बहुत किताबें पढ़ते थे. हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड इन अ डे? इवन इफ यू आर अ वोरेशियस रीडर, it is believed that Osho used to read 20 to 30 books every day. Yes, he had a photographic memory. What is that? That you don't need to read page to page. It's like photographic memory. Whatever you're looking at, pick. So 30 books, during the day. And then if you ask him, first book, page number 153, paragraph 3, last line, second last word, he will be there. Some people talk about midbrain activation, lot of stuff. I don't know, but we all know that he was enlightened at the age of 21 and he had a photographic memory. तो वो जो भी देखते थे याद हो जाता था. He was a wonderful painter. It is believed that for him, special paper used to come from Japan, and Japanese paper, on that canvas he used to paint, and he used to leave electric or rather electronic pattern of each painting below. What is electronic pattern? Some of you, if you've gone through healing modality known as magnified healing, you know that you, me, everything around has an electronic pattern. Like for magnified healing, we have electronic 3 petals, so that's the electronic pattern, which is like you have barcodes in Paytm or anything else. You have a barcode, you scan it and there you go. So similarly, I remember one of the girl mentioning there when we were doing this photo exhibition tour that it's kind of a window, the electronic pattern of each painting wherein, you can time travel, you can get into it and it transports you somewhere else. So every painting is meditative in nature. So it was wonderful. He studied philosophy, so he was very comfortable and he could decode your mind like that. A lot of people say कि उनसे संन्यास मत लेना या उनकी आंखों में मत देखना क्योंकि वो सम्मोहित कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, माइंड रीड कर सकते हैं. सो ही डिड हिज BA and MA in philosophy, and then in University of Jabalpur and Raipur he started teaching philosophy. उनको वहां से भी निकाल दिया गया ये कह के कि आप बच्चों को पोल्यूट कर रहे हो आपकी स्वच्छंद थिंकिंग से और दायरे क्रॉस कर रहे हो, like that. Now also a few things that I really noticed and I was happy to know about it. Okay, let's move to it on the second half part.
यूएस में उन्होंने, जैसे यहाँ पर पुणे में उन्होंने आश्रम बनाया, यूएस में भी उन्होंने ओरेगन में रजनीशपुरम बहुत बड़ा एक आश्रम बनाया। और ओशो की लाइफ जो थी, अब जो मैंने वहां जाके बहुत सी चीजें सीखी जिससे कि मेरे अंदर की भी बहुत उथल पुथल शांत हुई। ओशो का जीवन कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। आश्रम, there were murders in the ashram, there were a lot of money and power play. He was jailed for 10 days in US. His plane, he was with his selected followers on a plane which they rented out for almost 1 year because 21 countries denied Osho entry. Can you believe it? तो 1 साल तक उनके फॉलोअर्स ने किराया दिया, लीगल बैटल्स लड़े। तो इतनी कंट्रोवर्सी से घिरने के बाद भी जिन लोगों का ओशो में विश्वास था, जिनको अपने गुरु से कुछ मिल रहा था, जिनको अलग अलग मेडिटेशन, चाहे वो डायनेमिक हो, कुंडलिनी हो, नटराज हो, देवयानी हो, चक्रास हो, वो सीखने को मिल रहा था। तो इतनी कंट्रोवर्सी से घिरे होने के बाद भी उनके फॉलोअर्स, उनके मित्र, उनके फ्रेंड्स साथ में खड़े रहे। कोई मसल पावर, कोई मनी पावर, कोई लीगल बैटल को सॉल्व करने के लिए। एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड इट इज बिलीव दैट लेटर ऑन ही इनिशिएटेड हिज पेरेंट्स ऑल्सो। आज भी अगर आप पुणे कम्यून में जाते हैं तो वहां ओशो के साथ साथ उनके बोथ पेरेंट्स की समाधि भी है, जहां आप बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। ओशो की समाधि पे साइलेंट सिटिंग होती है, ही इज राइट देयर। When I took my Osho sannyas way back, ages back, my sannyas name is Ma Anand Puja. We got this picture framed and we had put it here. He's been always there. He's also a mystery man. मैंने वहां जाकर अपने जो पहले से मेडिटेशंस आते थे उनको रिवाइज किया, कुछ नए मेडिटेशन सीखे। मार्शल आर्ट्स सो कॉल के थ्रू स्पिरिचुअल असेंशन होता है, जैसे टाई ची, ची गोंग, ये सब सीखा। फॉर एग्जाम्पल रेकी आजकल समझा जाता है बस हर बीमारी का सोल्यूशन है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्लीज हमें रेकी देके ठीक कर ले। आप में से कितने लोग जानते हैं कि ओरिजिनली रेकी जो थी वो एक स्पिरिचुअल भक्ति, एक एनलाइटनमेंट की जर्नी का प्रोसेस था। इसी तरीके से टाई ची, ची गोंग ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं है, बल्कि इसमें आप एनर्जी बॉल बनाते हैं, एनर्जी को फील करते हैं। रेकी लेवल 3 में इसकी टाई ची के साथ मेडिटेशन भी होती है, स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं। सूफी विरलिंग, डिवरिश हमने की, बहुत कुछ सीखा, वो भी बहुत मेडिटेटिव है। जब आप बहुत तेज 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 ऐसे ऐसे स्पीड से घूमते हैं विद योर आईज ओपन एंड आपको बिल्कुल चक्कर नहीं आता है, यू नो, इट्स क्रेजी। I did it for 45 minutes. Eyes are open. तो एक पॉइंट के बाद जो एक्सटर्नल है आप उसको देख रहे हैं बट न्यूट्रल स्टेट में देख रहे हैं, इट स्टॉप्स टू एग्जिस्ट फॉर यू एंड आपकी इंटरनल ग्राउंडिंग होती है। मैंने ये सीखा कि हमें हिम्मत के साथ साथ लड़ने की ताकत होनी जरूरी है। हमारा स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म हमको डरपोक की तरह भागना नहीं सिखाता, क्योंकि आज भी मेरे 10 दिन के ट्रिप के दौरान वहां पर भी जमीन और आश्रम के कब्जे का झगड़ा चल रहा है। बाहर हजारों लोग खड़े थे, पुलिस आई, कुछ अरेस्ट भी हुए। अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये आश्रम मेरा है, ओशो मेरे थे, ओशो तो सबके थे। वो प्यार सिखाते थे, माला पहननी है नहीं पहननी, आश्रम लॉस में जा रहा है, जमीन को बेचो, पॉलिटिक्स वहां भी। तो आप ऐसे अपने हालात से लड़के नहीं भाग सकते कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं या मैं इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करूंगी और हिमालय पे जाके रहूंगी, जैसे कि मैं करीबन 2 साल से सोच रही थी अपनी निजी जिंदगी में। तो हम भाग नहीं सकते। हाँ, हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें सॉफ्ट बनाती है, हमें कोमल बनाती है, हमें इनवर्ट बनाती है, किसी को डिस्टर्ब करना नहीं सिखाती। लेकिन यदि कोई आप पर वार करे तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। तो दिल और दिमाग, यिंग और यांग, शिव और शक्ति का मिलन अर्धनारीश्वर बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज मेडिटेशंस के साथ साथ जो नए नए टेक्निक्स मैंने सीखे, पेंटिंग सीखी, उनके साथ साथ मैंने अपने प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना है, जैसे कि मैंने अपने लाइफ में पहले भी कई बार किया है। और यही मैं मैसेज देना चाहूंगी। हाँ, उस प्रॉब्लम को फेस करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट या डिफेंड करने में आप कोई फाउल प्ले ना करें, आप सच्चे रहें। अगर सामने वाली पार्टी झूठ, सच, मैनिपुलेशन यूज कर रही है तो
तो वहां सबसे बड़ी कचहरी है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन अपने प्रॉब्लम्स को फेस करें और उस दौरान एंजाइटी या ओवरवेलमिंगनेस नहीं, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम रही है कि बहुत एंजाइटी हो गई, बहुत पैनिक हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, छटपटाने लगे और अपनों से ही झगड़ा कर लिया। तो ऐसे में आपको ग्राउंडेड रहना है, जैसे सूफी वर्डलिंग में मैंने बताया, आंखें खुली हैं, बाहर बहुत कुछ देख रहे हैं लेकिन अंदर शांत है, तो वो करना बहुत जरूरी है। ये एक डेडिकेशन है जो मैंने ब्यूटीफुल 10-12 दिन ओशो पुणे में बिताए, कि मैंने जो वहां सीखा, जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए, वो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने ये यूट्यूब चैनल से साझा करूं। आप भी कमेंट में जरूर लिखें अगर इसके अलावा आप ओशो के बारे में कुछ भी जानते हैं, ताकि और लोग पढ़ें और उसे शेयर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने वहां बहुत बढ़िया खाना खाया जो सिर्फ स्वादिष्ट नहीं था बल्कि सात्विक था, एनर्जेटिकली बहुत चार्ज था। पीपल से द फूड इज एक्सपेंसिव इनसाइड, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज द वैल्यू फॉर मनी दैट यू कैरी इट इन। आपकी डाइट, आपका मील साइज छोटा होता जाता है। जैसे कहते हैं जो सन्यासी लोग हैं वो तो खाना ही नहीं खाते, बिकॉज हवा पानी सूरज से वो अपनी पावर लेते हैं। वेल, देयर इज सम टाइम फॉर अस टू रीच देयर। टिल दैट टाइम अगर एक बोल भी मैं खाती थी खिचड़ी का या मिलेट पॉरेज, तो पूरा दिन पेट भरा रहता था, क्योंकि उस खाने की ऊर्जा इतनी बढ़िया होती थी। और लाइट टमी के साथ आप मेडिटेशंस बहुत अच्छे कर सकते हैं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल to Osho, to all the management there, to all the people that I met, beautiful friends I met across the globe, you know, Canada, Australia, everywhere, for the beautiful experiences that I have. और मैं इस वीडियो के साथ ओशो के बारे में जानकारी शेयर करने के साथ साथ ये विश करती हूँ कि मैं, आप, हम सब अपने आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ सके और जल्द से जल्द मोक्ष का नेक्टर चख पाए। Thank you so much for watching this video. Feel free to share it with other people if it resonates with your heart. I love you so much. Namaste.